Hello everyone, this is Dr. Sabha Tarannu, BMS MDIU Gold Medalist, founder of Swastharaksha Ayurveda Clinic, Panchakarma and Wellness Center, Gulbarga. Today we'll be learning about Swarasa Kalpana, and this will be part 1 because part 2 will be scheduled after few days. You might know Swarasa Kalpana is one among Panchavidha Kashaya Kalpana. What is Panchavidha Kashaya Kalpana? There are 5 Kashaya Kalpanas. As per Charaka, Panchavidham Kashaya Kalpanam iti Tadhyata. Swarasa, Kalka, Shuta, Shita, Fanta, Kashaya iti. As per Ashtanga Hridaya, Kashaya Yoniya, Pancharasa, Lavana Varjitaha, Rasa, Kalka, Shuta, Shita, Fantascheti, Prakalpana. Panchavidhai Kashayanam, Purvam Baladhikya. When you are learning Bhaishya Kalpana, you must know the importance of Sharangadhara and his Samhita, Sharangadhara Samhita. He says that Atataha Swarasa Kalka Kwatha Hima Fanta. Even Sharangadhara says Swarasa Kalka Kwatha Hima Fanta are 5 Kashaya Kalpanas. Arka Prakash tells that Kalka, Churna, Rasa, Taila, Arka are 5 Aushadha Yoga, and Shushruta Samhita adds Kshira into Panchavidha Kashaya Kalpanas, and he tells that there are Shadvidha Kashaya Kalpanas by adding Kshira. That will be Kshira, Rasa, that is Swarasa, Kalka, Kashaya, Sita means Hima, and Fanta. And Saptavidha Kashaya Kalpanas is told by Kashyapa by adding Abhishava. Churna Shita Kashaya Swaraso Abhishavastata Fantakalkastata Kwato Yathavatam Nibodhame. So we can conclude that Charaka tells 5, that is Panchavidha Kashaya Kalpana. Ashtanga Sangraha says 5, Ashtanga Hridaya says 5, and Sharangadhara Samhita, Sharangadhara tells 5, and Arka Prakash tells 5, but there are different forms of Panchavidha Kashaya Kalpana there. And Shushruta Samhita tells 6 types, that is Shadvidha Kashaya Kalpanas, and Kashyapa says Saptavidha Kashaya Kalpanas. So, Swarasa is one among Kashaya Kalpana. Gurutva and Virya of these increases in preceding order. So, among Panchavidha Kashaya Kalpana, Swarasa is having more Gurutva and Virya. Jaliyamsha and Parthivamsha, predominant drug, are preferred for the preparation of Swarasa. What is Swarasa? As per Shabda Kalpadruma, Swarasa iti Sadhyo Rasaha. Swarasa iti Sadhyo Rasa. Sadhyo Rasa means जब का जब जो निकलता है रस एक प्लांट से या एक प्लांट पार्ट से, तो उसे कहते हैं हम स्वरस. Swarasa is freshly extracted juice of a plant or a plant part. As per Charaka Samhita Sutrasthana, 4th chapter, 7th shloka, the definition goes as such: Yantra nishpiritat dravyat rasah swarasa uchyate. यहाँ पे देखिए यंत्र बोल रहा है, मतलब कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे या फिर मैकेनिकली एक्सप्रेस्ड जूस होंगे, मतलब कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स से. यंत्र निष्पीड़ितात मतलब निष्पीड़न, पीड़न करना, मतलब अच्छे से एक्सप्रेस करके जूस निकालना. द्रव्यात मतलब एक द्रव्य का रस निकालना. रसह स्वरस उच्यते, और जो जब ऐसा निष्पीड़न करके एक जो रस निकलता है एक द्रव्य से, उसे कहते हैं स्वरस. Mechanically expressed juice of a plant is called as swarasa. अब आपको स्वरसा के बारे में मालूम पड़ेगा कि स्वरसा क्या है, तो कल्पना क्या है. तो शब्द कल्पद्रुमा में बोला है कल्पयते विधीयते असौ विधिहि. It is a process or a method that is employed. As per Chakrapani, he tells that prakalpanam samskaranam iti means prakalpana is nothing but a samskarana.
that is with Jal, Agni, etc. Types based on method of preparation. There are majorly two types, Anagni Siddham Swarasa and Agni Siddham Swarasa. नेम से ही पता चलता है अन अग्नि सिद्धम मीन्स नो, अग्नि विदाउट एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ अग्नि, फायर और हीट, सिद्धम प्रिपरेशन, एंड सेकेंड agni siddham means with involvement of agni. What swarasa have been formed is known as agni siddham swarasa. In unagni siddham swarasa there are two types. One is nishpidito swarasah and second one is shita kashaya vidhanena kritam. Now where we can consider it, where we can consider anagni siddham, obviously it is for obvious reason that for freshly collected drugs is meant for anagni siddham without any use of fire or heat. जहाँ पे हमें प्लांट जब रॉ रहता है तब का तभी उसको निष्पीड़न करके उसको अच्छे से क्रश करके जूस जो एक्सट्रैक्ट करते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट रहता है, वो इसीलिए उसे अनग्नि कहते हैं. सो निष्पीड़ितो स्वरसा मीन्स व्हाट आई टोल्ड, क्रश करके. अनदर वन इज शीत कषाय विधानेन कृतम. शीत कषाय इज नथिंग बट हिमा के लिए, जैसे हिमा को हम फॉर्म करते हैं सेम उसके जैसा मेथड को शीत कषाय विधानेन कृतम कहते हैं. तो हम बेसिकली इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, स्वरसा को हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं. फॉर फ्रेशली कलेक्टेड ड्रग्स, इन केस ऑफ ड्राई ड्रग्स, ये दोनों अनअग्नि सिद्धम में आ जाता. ओके, फ्रेशली कलेक्टेड ड्रग के लिए निष्पीड़ितो स्वरसा रहता है. ओके, और ड्राई ड्रग्स के लिए शीत कषाय विधानेन कृतम. हम यहाँ पे पर्टिकुलरली याद रखना है कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ हीट this process is going on. Next is anagni siddham. anagni siddham हम कंसिडर कर सकते इन केस ऑफ वेरी हार्ड ड्रग, जहाँ पे हमको शीत कषाय बनाने से भी हमको जब ड्रग हमारा जो स्वरसा नहीं मिलता उसे हम हार्ड ड्रग के अंदर मतलब विद अग्नि सिद्ध करना ही पड़ेगा. और नेक्स्ट वन विल बी इन केस ऑफ फाइब्रस ड्रग, वहाँ पे ड्रग एक यूज हो जाता है. फाइब्रस ड्रग के लिए पुटपाक विधेन कृतम. और जब बहुत ही ज्यादा हार्ड ड्रग्स है तो श्रुत कषाय विधानेन कृतम. श्रुत कषाय इज नथिंग बट यू ऑल नो स्वरसा कल का श्रुत शीत फांटा. श्रुता इज नथिंग बट कषाय. कषाय को जैसे हम विधान करते मतलब कैसे प्रिपेयर करते, मतलब अच्छे से बॉईल करके रिड्यूस करके जो करते उसे कषाय कहते, राइट. इन दैट फॉर्म वेरी हार्ड ड्रग्स आर टू बी बॉइल्ड एंड रिड्यूस्ड. वो जो फैक्टर्स से हमको जो स्वरस मिलता है उसे कहते हैं हाँ अग्नि सिद्ध स्वरसा. तो यहाँ पे हम बेसिकली दो टाइप ऑफ स्वरसा मिलते हैं, अनग्नि सिद्ध एंड अग्नि सिद्ध. मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से ये डिवाइड हुआ है. और अनग्नि सिद्ध में हम फ्रेशली कलेक्टेड ड्रग्स के लिए यूज कर सकते हैं और ड्राई ड्रग्स के लिए यूज कर सकते हैं. निष्पीड़ितो स्वरसा फ्रेशली कलेक्टेड के लिए अच्छे से पाउंड करके निकालना, एंड शीत कषाय विधानेन कृतम फॉर ड्राई ड्रग्स. whereas anagni siddham which is second type of swarasa as per method of preparation, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड ड्रग्स, वेरी हार्ड ड्रग्स के लिए शुद्ध कषाय विधानेन कृतम आता है, एंड कोर्स जो ड्रग रहता है उसके लिए पुटपाक विधेन कृतम. Further we'll learn about in detail. You might get a doubt like मैम आप यहाँ पे हिमा भी बोल रहे और यहाँ पे आप क्वाथ कल्पना का भी जिक्र कर रहे, that is श्रुत कषाय and शीत कषाय. So I'll be clearing the doubt in my next video. But मैं आपको एक hint देते जाता हूँ why it is been considered so. यहाँ पे पर्टिकुलरली उन विधानेन कृतम बोल के वर्ड इसीलिए यूज कर रहा है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन लाइक अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, whereas वहाँ पे रेशियो का मेंशन नहीं है. सो आई हैव गिवन अ प्रॉपर हिंट फॉर यू ऑल व्हाट इज द डिफरेंस. अगर आपको हिंट समझ आया तो आप कमेंट में लिखिए क्या है बोल के, और अगर नहीं आया तो मेरे नेक्स्ट क्लास के लिए
मुझे फॉलो करें। अगर आपको आया भी तो भी नेक्स्ट क्लास के लिए फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ और जानकारी आपको हासिल होगी। अभी के लिए अलविदा, but I'll be meeting you in my next class about the detailed description of Anagni and Agni method of preparation of Swarasa, wherein आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ और बहुत सारा इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, और जो मैंने आज डाउट दिया है आपको वहाँ पे वो नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफाई हो जाएगा। तो देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर बजाइए, एंड फॉलोअर्स बढ़ना चाहिए गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। जो BMS स्टूडेंट है उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा क्लास, ताकि इजीली आप समझ के आप खुद लिख सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको टॉपिक समझ आया, देयर इज़ नो नीड कि आप ऐसे ही प्रेजेंट करना, ऐसे प्रेजेंट, यू कैन प्रेजेंट हाउएवर यू वांट। और मैं आपको लास्ट में अपनी क्लास में आपको हिंट दूंगी कि कैसा लिखना अगर क्वेश्चन पूछा तो, सो दैट यू कैन गेट मोर मार्क्स आउट ऑफ इट। थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो प्लीज़ कमेंट करें, सो दैट मैं वो अपनी अगली क्लास में उसको आपको समझा दूंगी। थैंक यू, बाय।